Hello students, so today we will do exercise 1.5, that is class 9 maths. Okay, exercise 1.5, okay, question number 4. So represent root over of 9.3 on a numbered line. Okay, to represent root 9.3 on the numbered line, first of all we have to draw a line segment of 9.3 centimeters. So use scale. Okay, with the help of a scale, first of all we will draw a line segment. Okay, a line segment. Suppose this is a line segment AB. Okay, 9.3 centimeter. Okay, so step we are writing. Step 1: draw a line segment AB is equal to 9.3 centimeter. Okay. Now, okay. Step 2 will be what? Step 2, from point B, we have to draw a line of 1 centimeter. From point B, okay, with the help of a scale, okay, let this be point C, and this one is your 1 centimeter. From A to B, it's 9 centimeter. From B to C, it's 1 centimeter. Okay. Step 2 will be draw BC equal 1 centimeter. Step 3, draw the perpendicular bisector of the line segment AC. Okay, the bigger line segment AC. Draw the perpendicular bisector of line segment AC. Okay, to draw the perpendicular bisector of AC, we will require a compass. Okay, so we have, see, this is the tip of the compass and this is my pencil, suppose. Okay, so we have to keep the tip of the compass here and take more than half of this line, more than half of this AC line. More than half means up to here, I think it's half. More than half will be here. So just cut an arc like this. Okay, this point and below. Okay, like this. So with this point, okay, with this point, okay, we have just cut an arc above the line and below the line. Again, from point C, okay, taking the same radius. Okay, we have to draw another arc. Okay, now we have got 2 points. Okay, we have got 2 points, this point and this point. We have to join these 2 points with the help of dotted lines, and this point will be the midpoint of this A line segment AC, and we will denote it to be D. And this point will be our reference point, that is 0. Okay, let this be 0. Come to this D. Okay. Now, with the help, now taking O as center, okay, taking O as center and OA as radius, O as center, and with the help of compass. Okay, you have to use compass here. Taking O as center and keep the pencil here and just like this you have to draw. Okay, like this with the help of compass. Okay, it will be like this. Okay, now, okay, OA, step 4 will be taking O as center and OA as radius, draw a semicircle. Draw semicircle. Okay. Now,
Now what we have to do? From point B, that is step number 5. Step number 5 will be what? From point B, we have to draw 90 degree. Okay, we have to draw 90 degree with the help of protractor. With the help of protractor, draw 90 degree. Okay, see here, this arc, semicircle, okay, this is the semicircle and this is the perpendicular, okay, drawn from this point. This arc and this perpendicular will meet at this point. Let this point be D. Now our BD will be how much? Root over of 9.3. Okay, root over of 9.3. Now what we have to do? We have to extend this line. Okay. Step 4. Step 5 will be from point B, draw 90 degree. From point B, draw 90 degree with the help of a protractor. Okay, with the help of a protractor. With the help of a protractor, we will draw a line segment of 90 degree from point. From point B, we have to draw 90 degree with the help of protractor. Okay. Now, with the help of compass, measure BD. BD measure. Okay, measure BD and just cut an arc like this. Okay, cut an arc like this. Measure BD and cut an arc like this. On this point will be root 9 point. Okay. So this is the okay. This point E will be root 9 point. This point. Okay. Next question number 5 is rationalize the denominator of the following. Now what do you mean by rational? Rationalizing the denominator. Rationalizing the denominator. Suppose we have an irrational number, root over of x. Okay. We have an irrational number in the denominator. Now with the help of this rationalizing, we can make this rational number. That means in the denominator, after converting from an irrational number to a rational number, it is called what? The rationalizing. Okay, that means this number should be a rational number. Okay, now for that what we have to do? See here. So this is an irrational number. Why? Because this is root 7. Denominator is an irrational number. We have to make denominator what? A rational number. Okay, यहाँ पे देखो denominator जो है वो root के अंदर में है और ये irrational number है. रेशनलाइज का मतलब क्या होता है? हमें ये जो रूट का जो नंबर है वो हमें एक इरेशनल नंबर यहाँ से रूट हटाना है. ठीक है, रेशनल मतलब लाना है यहाँ पे डिनोमिनेटर पे. ठीक है, न्यूमरेटर पे रूट हो सकता है बट डिनोमिनेटर पे हमें क्या लाना है? एक रेशनल नंबर लाना है, मतलब विदाउट रूट. तो अब भी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर. अब देखो कैसे होता है ये रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर. तो यहाँ पे जो भी नंबर दिया रहेगा 1/√7 वो नंबर लिख लेना है. ठीक है, जो भी नंबर दिया रहेगा वो नंबर लिख लेना है. इसके बाद में क्या करेंगे? अगर मान लो ये नंबर अकेला है, √7 है, √5 है, √2 है, तो हम लोग बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. अगर यहाँ पे नंबर मान लो कोई भी अकेला नंबर मीन्स √5 है, √2 है, √7 है, √11 है, √13 है, √21 है. ठीक है, तो वही नंबर हम लोग बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, तो ये हम √7/√7 मल्टीप्लाई कर दिए. अब रूट देखो 1 इंटू √7 होगा और √7 इंटू √7 क्या होगा? बस 7 होगा. रिमेम्बर √2 इंटू √2 क्या होगा? 2 होगा. √3 इंटू √3 क्या होगा? 3 होगा. यानी दो इरेशनल नंबर का रूट सेम वो एक रेशनल नंबर हो जाता है. ठीक है, √5 इंटू √5 क्या है? 5. ठीक है, ये याद रखना. √7 into √7 it is numerator into numerator. 1 into √7 is √7 and √7 into √7 is 7. So ये हमारा required form है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. यहाँ पे भी हम लिखेंगे rationalizing the denominator. Rationalizing the denominator. यहाँ पे देखो हमारा दो नंबर है ना, √7 माइनस √6 है. ऐसे टाइप में हम लोग क्या करेंगे? जब भी मतलब √7 माइनस √6 यानी दो नंबर दिया हुआ है और बीच में कोई साइन है, मतलब प्लस है या माइनस है, प्लस है या माइनस ही रहेगा, उसके अलावा कुछ नहीं रहेगा. ठीक है,
रूट 7 प्लस रूट 6 हो सकता है या रूट 7 माइनस रूट 6, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, सो अभी हमें जो नंबर दिया वही लिखना है। ठीक है, और हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या से मल्टीप्लाई करना है। देखो इस नंबर का ऑपोजिट नंबर, इस नंबर का ऑपोजिट नंबर क्या है, मान लो यहाँ पे मेन नंबर क्या है हमारा, रूट 7 माइनस रूट 6 है, तो ऊपर और नीचे हमें इसका ऑपोजिट नंबर यानी यहाँ पे ऑपोजिट साइन बस चेंज कर देना है। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे जो होगा वो रूट 7 प्लस रूट 6 होगा। ठीक है, जो नंबर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ना इसका ऑपोजिट है, यानी रूट 7 माइनस रूट 6 का ऑपोजिट नंबर क्या है, रूट 7 प्लस रूट 6। तो रूट 7 प्लस रूट 6 हम लोग बहुत न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देंगे। रूट 7 प्लस रूट 6, रूट 7 प्लस रूट 6 मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू दिस सेम नंबर आएगा डिवाइडेड बाय, अब देखो डिनोमिनेटर में जो है वो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्म में आ रहा है, रूट 7 प्लस रूट ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्म, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में आ रहा है ये। ठीक है, जब भी रेशनलाइज करोगे, अगर ऐसा नंबर का अगर रेशनलाइज करोगे ना, डिनोमिनेटर हमेशा याद रखना एक मींस फॉर्म में आएगा, एंड दैट फॉर्म इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी यहाँ पे हमें क्या करना है, रूट 7 स्क्वायर माइनस रूट 6 स्क्वायर कर देना है। ठीक है, रूट 7 स्क्वायर माइनस रूट 6 स्क्वायर, बिकॉज वाई, बिकॉज न्यूमरेटर इज ऑफ द फॉर्म, सॉरी डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म रूट 7 माइनस रूट 6 इंटू रूट 7 प्लस रूट 6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, रूट 7 प्लस रूट 6। अच्छा, रूट 7 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, रूट 7 स्क्वायर का मतलब होता है रूट 7 इंटू रूट 7, रूट 7 इंटू रूट 7। और अभी अभी हमने क्या सीखा है कि कोई भी मतलब दो सेम इरेशनल नंबर अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या आएगा, एक रेशनल नंबर, यानी रूट 7 इंटू रूट 7 क्या आएगा, 7। रूट 7 स्क्वायर का मतलब होता है रूट 7 इंटू रूट 7, 7। रूट 6 स्क्वायर मतलब रूट 6 इंटू रूट 6 विच इज इक्वल टू 6। ठीक है, रूट 7 प्लस रूट 6, 7 माइनस 6 कितना होगा, 1, ये आंसर है। ठीक है, विच कैन बी फर्दर रिटन एज रूट 7 प्लस रूट 6, दिस इज द रिक्वायर्ड। देखो डिनोमिनेटर में हमारा क्या आ रहा है, एक रेशनल नंबर आ रहा है, 1 आ रहा है, सो दिस इज रेशनलाइज्ड। ओके, अभी नेक्स्ट नंबर में देखो ये 2 है। ओके, इसको हमें रेशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर जो है वो रूट अंडर फॉर्म में है, अंडर रूट फॉर्म में है, रेडिकल फॉर्म में है, सो वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू अ रेशनल नंबर, इरेशनल को रेशनल बनाना है। ओके, सो हम लोग क्या लिखेंगे, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, then we will get सेम नंबर लिखना है यहाँ पे, रूट 5 प्लस रूट 2। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, क्या किया था हमने, बस साइन चेंज किया था ना, नंबर सेम था, रूट 5 प्लस रूट 2 का ऑपोजिट क्या होगा, रूट 5 माइनस रूट 2। ठीक है, रूट 5 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाय रूट 5 माइनस रूट 2, तो ये हो गया हमारा रेशनलाइजेशन। देखो रूट 5 प्लस रूट 2 का ऑपोजिट क्या है, रूट 5 माइनस रूट 2, एंड दैट वी हैव मल्टीप्लाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, सो 1 into root 5 minus root 2 is same number, it will come root 5 minus root 2। और मैंने अब पिछले वाले क्वेश्चन में क्या बोला था, रोमन नंबर 2 में क्या बोला था कि मतलब डिनोमिनेटर में हमेशा क्या फॉर्म में आएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्म में आएगा। ये देखो ये क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का वैल्यू रूट 5 है, बी का वैल्यू रूट 2 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, रूट 5 स्क्वायर माइनस रूट 2 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, रिमेम्बर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये जो हमारे डिनोमिनेटर में नंबर है वो हमेशा रूट 5 स्क्वायर माइनस रूट 2 स्क्वायर। ठीक है, सो रूट 5 माइनस रूट 2 बाय रूट 5 का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या है, रूट 5 स्क्वायर माइनस रूट 2 स्क्वायर, एंड रूट 5 स्क्वायर इज हाउ मच, 5, रूट 5 स्क्वायर इज 5, और रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2। तो क्या है हमारा, रूट 5 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2 कितना होगा, 3। अब देखो डिनोमिनेटर में पहले क्या था, एक इरेशनल नंबर था, अब हमने डिनोमिनेटर क्या लाया है, एक रेशनल नंबर, सो दिस इज कॉल्ड रेशनलाइजिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। यहां पे भी सेम टू सेम लिखेंगे हम लोग, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, वी गेट, ओके, नंबर जो है वो लिख दो 1 बाय रूट 7 माइनस 2। ठीक है, इंटू रूट 7 माइनस रूट 7 माइनस 2, इसका ऑपोजिट क्या होगा, रूट 7 प्लस 2, रूट 7 प्लस 2। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, रूट 7 प्लस 2, रूट
√7 प्लस 2। न्यूमरेटर में क्या है 1 इंटू ये तो सेम नंबर, ये नंबर हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या आएगा √7 प्लस 2, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ये देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, सो दिस वन विल बी √7 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। देखो √7 इंटू √7 स्क्वायर हो गया, ठीक है, माइनस ए प्लस ए माइनस हो गया, और 2 इंटू दैट इज 2 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का वैल्यू है हमारा √7 स्क्वायर और b का वैल्यू है 2, ओनली 2, दिस इज नॉट रूट ओवर ऑफ 2, दिस इज ओनली 2, रिमेंबर, ओके, मिस्टेक मत कर देना, दिस इज ओनली 2। तो इट इज √7 प्लस 2 बाई √7 का स्क्वायर क्या होगा 7 माइनस √7 स्क्वायर इज व्हाट, √7 का स्क्वायर क्या होगा 7, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, सो √7 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 4 इज हाउ मच 3। पहले में देखो एक इरेशनल नंबर था डेरिवेटिव में, अभी क्या है एक रेशनल नंबर है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्म, ओके।